Hello everyone. So my name is Vivek Kaushik and I run this NGO Clay Lab Education Foundation, and welcome to this another session of this video series. And I hope अब तक आप सब लोगों को पर्पस पता लग चुका है. I want to just help all of you to start your IAS exam or UPSC exam or civil services exam. जिस भी नाम से आप जानते हो इस एग्जाम को, कि help you to start your preparation journey smoothly without wasting time, without wasting paisa, without wasting a lot of money, and starting it in a smart manner. All right. So I am just starting now and reminding all of you कि ये questions मुझे हमेशा पूछे जाते हैं, like when should we start preparing, and I say today, from today itself, don't wait. Which sources should we study from? कोई भी एक source उठा लो, अच्छा सा finish कर दो उसे. Okay. Which subject stream make it easy for us? कोई भी सब difficult है, सब कुछ difficult है, but you have to be ready for hard work. ऐसा shortcut मत ढूंढो. Whatever you like, वो सब्जेक्ट लो. whatever stream you like, वो stream लो. जो भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो वो ग्रेजुएशन करो. ऐसे आईएएस में कुछ भी ऐसा हेल्प नहीं करेगा, आपका हार्ड वर्क करेगा. चाहे आप बीए इकोनॉमिक्स करो, चाहे आप बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, चाहे आप कुछ भी करो. इफ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, इफ यू आर वर्किंग स्मार्टली, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, यू विल बी एबल टू क्रैक इट. ऐसी चीजें इजी डिफिकल्ट नहीं होती है सब कुछ. ओके. एंड हाउ मच विल आई कवर इन दिस कोर्स? बेसिकली मैं आपको अभी स्टार्टिंग जो टोटल गोल है जनरल स्टडीज का, उस पे मैं फोकस कर रहा हूं, ताकि आपको 10% ऑफ द सिलेबस पता लग जाए, बट अप्रोच आपको पूरे एग्जाम की 100% पता लग जाएगी. यू विल सी इट इन टुडेस वीडियो आल्सो, हाउ आई विल रिलेट ऑल द थिंग्स. ऑलराइट. सो आई एम आस्किंग राइट नाउ that if you can devote your 200 hours to complete this video series nicely, ये करके दिखाओ तो हम आपको मान जाएंगे that you are serious, you can do next level also, and you will also get ready for next level. So what will I cover in this thing? I will not cover the whole syllabus, but it will help you a lot if you are preparing it for the first time. जो first time नहीं कर रहे हैं उनको already थोड़ा बहुत awareness होगा, but जिनको बिल्कुल awareness नहीं है, this will help them a lot how to start UPSC preparation. Which coaching should we go for? ये video series कर लो. Okay. उसके बाद खुद ही सोच लेना. Why am I doing it? Because I don't want the young people to waste their time, okay, and money. India, हम सब लोगों का important, we all are important part of society, and as an NGO we are working in that direction जहाँ पे हम ensure कर सके कि आप लोगों का time waste ना हो, and you guys are working in the right direction. सब लोग सही direction में काम करें, and that is why we are creating this video series. Any suggestion? Yes, ये video series जितना जल्दी हो सकता है finish कर दो. मेरे सर पे ये गोल गोल लाइट क्यों है? ऐसे ही just time pass करने के लिए, ठीक है? Every time I'll just try to bring something new. I like teaching, I like having fun while teaching, so that is why. और ये मेरे पीछे pictures क्यों हैं? आपको पता है शायद अब तक तो, कि दुनिया भर की जो books मैंने खरीदी थी, मैंने उनका picture खींचा आपको दिखाने के लिए कि books लेना ऐसे बस pictures में काम आता है, but actually में take one book and finish it nicely, take one source and finish it nicely. So this is what I was telling you, that in this series I will cover with you polity के 20 videos, geography, history, economics, science and technology, environment, ethics, international relations. And again you may ask कि भैया sorry, some of my students call me bhaiya, you can call me bhaiya, sir, Vivek, whatever you are okay with. That you may think that कि okay NCERT से पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें. भाई एक बार ये videos पूरी कर लो, ओके हो जाए, फिर एनसीईआरटी से भी देख लेना. आई विल टेल यू, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इतना डिटेल में बेसिक्स में है कि वो आप उतना फिनिश नहीं कर पाओगे. आई वांट यू कि पॉलिटी एक महीने में आप समझ जाओ एंड यू मूव ऑन. ओके, सो यू डोंट नीड टू वेस्ट लाइक 6-7 months ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज ज्योग्राफी. एक एक महीने में फट ऐसे करके फटाफट से आगे मूव करना है. सो गेट रेडी फॉर दैट. ऑलराइट, आई होप आप सब रेडी हैं. सो अब मैं पॉलिटी, अभी मैंने लास्ट स्क्रीन पे क्या दिखाया था, 20 वीडियो. सो पॉलिटी की 20 वीडियोस, दिस इज वीडियो 1. एंड 20 वीडियोस में व्हाट विल आई कवर? आई विल कवर दीज टॉपिक्स. सब देख लो आराम से, पोज करके भी देख सकते हो, पोज करना तो आसानी चीज है. ओके. इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट के बारे में, एग्जीक्यूटिव लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑल दीज थिंग्स, जुडिशरी, फिर स्टेट्स, गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशंस. काफी लोगों ने आजकल देखा भी होगा, अभी रिसेंटली इस मंथ जुलाई में महाराष्ट्र में कुछ सिचुएशन चल रहा है,
इमरजेंसी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, राइट, फिर लोकल गवर्नमेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं या नहीं, स्पेशल प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 370, 371, ये सब न्यूज में सुना होगा, प्रीएम्बल हमारा क्या है, एंड फिर रिवीजन, 20 वीडियोस, पॉलिटी का बेसिक आइडिया पता लग जाएगा आपको, फिर पता लग जाएगा पॉलिटी मुझे 1 महीने में कैसे फिनिश करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हर एक टॉपिक का मिल जाएगा। देन जब भी आप कभी अपना यूपीएससी के एग्जाम दोगे, आप 1 महीने में पॉलिटी फिनिश कर पाओगे। दैट इज माय गोल हियर। ऑलराइट, उसके बाद हम ज्योग्राफी पे जाएंगे एंड फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऐसा। सो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। Next 15 minutes, introduction to constitution. I hope all of you are ready to learn this topic, introduction to constitution. So पहले अपने आप सोचो, आपके वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? What do you think a constitution is? अपने वर्ड्स में सोचोगे, जितना समझोगे उतना चीजें याद रहेंगी, समझोगे, एस्से में लिखने के लिए काम आएगा। एस्से में आ जाएगा इंडिया डज नॉट नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एन एस्से ऑन इट, कुछ भी आ सकता है एस्से में, ठीक है। एज अ स्मार्ट पर्सन हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? फिर आप ऐसे लिखोगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दूसरे कंट्रीज में क्या ट्रेंड्स है, ऐसे आप अपना इससे लिखते हो। सो हर एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, ठीक है। आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स कॉन्स्टिट्यूशन की ये डेफिनेशन होती है। जनरली वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, समझना इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स जो कि गाइड करते हैं पूरे कंट्री को। ये रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। लाइक इंग्लैंड के केस में अनरिटन है बहुत सारे, इंडिया के केस में रिटन है। अब इसी की चीज में लोग 1 घंटा लगा देते हैं दुनिया भर की चीजें रटने में, बट यहाँ पे आई एम जस्ट सेइंग मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट अंडरस्टैंड इट। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच एस्टैब्लिश कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनके पावर्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनके फंक्शन क्या होंगे। ऑलराइट, पहला चीज ये। सेकंड, रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन देम। पार्लियामेंट ऊपर है या जुडिशरी ऊपर है या प्राइम मिनिस्टर ऊपर है या प्रेसिडेंट ऊपर है, ये सब चीजें आपस में, राइट। एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। क्या पुलिस हमें कभी भी जेल में डाल सकती है? क्या हमारी फ्रीडम है कोई भी जॉब करने की, इंडिया में कहीं पे भी जाने की, इंडिया से बाहर ट्रेवल करने की? क्या हमें स्टेट, ये जो स्टेट वर्ड है ना, ये स्टेट हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला स्टेट नहीं है। स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट हियर, ओके। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये स्टेट वर्ड का मतलब क्या है। पॉलिटी में स्टेट मीन्स जनरली जो ऐसे इन जनरल स्टेट वर्ड यूज होते हैं ना, उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट, ओके। ये काफी पुरानी प्रैक्टिस थी कि गवर्नमेंट को स्टेट बोला जाता था। एस्टेट्स वर्ड सुना है कि ये तो एस्टेट है, ऐसा, वहां से बहुत पुरानी हिस्ट्री है, छोड़ो उसको, मत जाना, उसमें मत जाओ। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? It is required to define everyone's power, regulate the relations between different bodies, and define their relations between the citizens, individuals, and the government. Right? It's like हर एक रूल डिसाइड करना कि कौन कैसे कब क्या करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू नो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बनना शुरू हो गया था, 46-47 में, एंड 1950 में जाके बन के पूरा हुआ था। तभी नवंबर 1949 में पूरा हो गया था, और 26 जनवरी को फिर काइंड ऑफ हम रिपब्लिक भी बन गए थे, एंड तब से हम हमारा रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को। काफी बच्चों को यही नहीं पता होता 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में रेडी हो गया था, उसको स्टार्ट करके रिपब्लिक जब हम बने थे, उसका रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग भी अभी डिस्कस करेंगे। दैट वाज 26 जनवरी 1950। अब फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता लग गया कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। लाइक कि भाई ऐसे ऐसे देश बनेगा, ये बॉडीज होंगी, ये पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट, ये उनकी पावर्स, ये आर्मी की पावर, ये जुडिशरी की पावर, ये लोकल गवर्नमेंट की पावर, ये गवर्नर की पावर, ये चीफ मिनिस्टर की पावर, ये फ्रीडम सब सिटीजन्स को मिलेगी, ये रूल कोई नहीं तोड़ सकता है, ऐसे हम रूल्स को चेंज करेंगे, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या हैं? सिंपल है बहुत समझने के लिए। फर्स्ट, इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट है। जैसे बुक होती है ना, इट्स लाइक अ बुक, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी ने बोला था और फिर किसी और ने सुन के किसी और इंसान को बोला, ऐसा नहीं है। इट इज अ प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था। यू ऑल नो कि देयर वाज अ पार्लियामेंट्री कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और तब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया था, ठीक है। सेकेंड, रिजिड येट फ्लेक्सिबल।
रिजिड मतलब इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ऐसा नहीं कि आज जस्ट टेकिंग नेम, ओके, नो ग्रज अगेंस्ट एनीवन, बट आज मोदी जी का मन किया कि चलो आज कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं, या फिर उससे पहले हमारे जो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनका मन किया कि चलो ये कुछ चेंज करते हैं। नहीं, ऐसा आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि चेंज ही नहीं कर सकते। काफी बार चेंज हुआ है, मोर देन 100 टाइम्स, और ये भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन 17th या 18th वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो है अभी, ठीक है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ज्यादा रिजिड भी नहीं है बट ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। यहां पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल आपका मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, कमेंट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में, 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ऐसे। तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, ऐसा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इस चीज के लिए, बट इट इज फ्लेक्सिबल फॉर दिस थिंग्स। ये आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएगा। ऐसे एस्से का पूरा एस्से में यूज हो सकता है ये पॉइंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अब चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज हम पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमने आज से 75 ईयर्स पहले बनाया था, हम हमारा अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, डू वी नीड टू चेंज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहां से आप बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, ट्रू या फॉल्स, ऐसी स्टेटमेंट चूज करना। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि जब मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, आप एससी के लिए रेडी हो जाओगे, आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओगे, आप मेंस के लिए रेडी हो जाओगे। सो स्मार्टली काम करते हैं, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो प्लीज, रट्टे मारने पे नहीं। फिर कॉपीड और ओरिजिनल। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में काफी लोग बोलते हैं कि प्रीएम्बल हमने वहां से लिया, हमने फ्रीडम लिबर्टी का कॉन्सेप्ट फ्रांस से, अमेरिका से लिया, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जर्मनी से लिया, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट रशिया से लिया, क्योंकि उन लोगों ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए थे हमसे, राइट। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल क्या है, ये तो पुराना कॉपी है। बट ये तो वही बात हो गई ना कि किसी ने गाड़ी बना ली और अब कोई नया इंसान गाड़ी बनाए और 4 पहिए हो गए उस गाड़ी में तो विल यू से कि अरे तुमने तो नई गाड़ी बनाई नहीं, ये तो पुरानी गाड़ी है, टेस्ला ने कोई नई गाड़ी थोड़ी ना बनाई है, 4 पहिए तो हमेशा से ही होते थे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी तो सेम रहेंगे ना। एंड देयर इज नो हार्म, नो शेम इन कॉपिंग अ गुड थिंग। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम भी करें, उसमें बुराई क्या है। इफ समवन इज हेल्पिंग समवन, हम भी करें तो उसमें बुराई क्या है, राइट। सो देयर शुड नॉट बी एनी ग्रज अगेंस्ट कि हमने ये कॉपी कर लिया, बट हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा, व्हाट कैन बी यूज्ड, व्हाट कैन नॉट बी यूज्ड, हाउ इट कैन बी यूज्ड। हमने सब कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से स्टडी किया, एंड देन वी टुक द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। आप भी धीरे धीरे इसको जितना समझोगे ना, इतना प्यार करने लगोगे, ओके। आई डू लव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉट। सो ये भी आपको समझना जरूरी है कि इट इज, यस, काफी सोर्सेस से लिया गया है, बट स्टिल इट हैज इट्स ओन यूनिकनेस, इट हैज इट्स ओन ओरिजिनलिटी, राइट। एंड इट इज द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल कंट्री। ऐसा नहीं है तमिलनाडु अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, वेस्ट बंगाल अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, मध्य प्रदेश अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, हिमाचल प्रदेश अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, गुजरात अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये मेन फीचर्स तो आई होप सबको अब याद रह जाएगी। आपको आंसर में लिखना आना चाहिए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो ये मेन चीज हो गया। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड आज की। कुछ वर्ड्स को समझते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है, और ये वर्ड्स को समझना, आई थिंक एवरी एडल्ट सिटीजन शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी और इन देयर लोकल लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश वर्ड्स को समझना ही इज इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग कि एज अ मेच्योर, स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको उनके कॉन्सेप्ट का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, फर्स्ट वन, सो इंडिया इज अ सोवरन कंट्री। ओके, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, सॉरी, आई हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओनली, और अभी भी मैं इंग्लिश मीडियम में ही जनरली बच्चों को हेल्प करता हूँ। बट सोवरन इज बेसिकली यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, आपको कोई और कंट्री और कोई बाहरी ताकत कंट्रोल नहीं कर रही है, यू आर सोवरन, आप इंडिपेंडेंट हो। ओके, सो इंडिया इज अ सोवरन कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री, सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ही ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट इंडिया इज अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 5 वर्ड्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, सो आई एम डिस्कसिंग दीज वर्ड्स। सोवरन मतलब इंडिपेंडेंट, नो वन इज कंट्रोलिंग यू, यू आर बाय योरसेल्फ। सोशलिस्ट मतलब
जहां पे पूरे सोसाइटी का वेलफेयर पे फोकस किया जाता है। इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट इज नॉट अबाउट कि ओके कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज अ कंट्री जहां पे वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है, पूरे सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, गवर्नमेंट एक्टिवली टेक स्टेप इन दैट डायरेक्शन, स्कीम्स चलाई जाती हैं कि कैसे गरीब लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं, जिन कम्युनिटीज के पास कम रिसोर्सेज हैं उनको कैसे दे सकते हैं। तो सोशलिस्ट कम्स फ्रॉम दैट एंगल। ठीक है, डीपर मीनिंग में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, बेसिक आइडिया बस दिया है समझने का आपको। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, डेमोक्रेटिक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेटिक जो भी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रन कर रही है, दैट इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड वन। तो हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे एमएलए एमपीज, एमएलए होते हैं स्टेट में, एमपी होते हैं नेशनल लेवल पे, राइट। ये धीरे धीरे आप लोगों को सिस्टम समझ में आएगा जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लोग जब इलेक्टेड होते हैं तो कंट्री डेमोक्रेटिक होता है। सो दैट इज व्हाई वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अमेरिका ऑल्सो इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंग्लैंड ऑल्सो इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई भी ऐसा नहीं कि बस वो उस फैमिली में पैदा हो गया तो वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर बन जाएगा, राइट। रिपब्लिक, अब रिपब्लिक में भी बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि हम बार बार चुनाव कर सकते हैं। नो, रिपब्लिक इज नॉट दैट कि हम बार बार चुनाव कर सकते हैं, किसका चुनाव कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो रिपब्लिक इज कि आप हेड ऑफ द स्टेट को बार बार चुन सकते हो। फ्रीडम से पहले हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन था? इट वॉज अज्यूम्ड कि जो ब्रिटेन के हेड थे, यूनाइटेड किंगडम के, वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट थे। तो जो भी रॉयल फैमिली वहां का होगा। अभी हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, सो हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इलेक्टेड by a process, not by birthright but by election they are selected, or anyone can apply. उनके कुछ conditions हैं but anyone can apply to be the president of the country. But we will see process जो अभी हम 6th-7th वीडियो में देखेंगे। but ये word समझना बहुत important है। and parliamentary form of government, parliamentary form of government मतलब जो हमारे ultimate decision making body है ना, वो parliament है। अमेरिका is a presidential system, इंग्लैंड इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज है जिसमें दोनों का मिक्स है। सो इंडिया एंड इंग्लैंड आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज दोनों जगह पार्लियामेंट इज द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ओके, ठीक है। अमेरिका इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिकॉज अमेरिका में प्रेसिडेंट इज द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। उनका भी हमें सिस्टम ज्यादा नहीं समझना है, बाद में हम थोड़ा बहुत देखेंगे, बट अभी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। So I hope all of you are understanding these words. Sovereign मतलब we are independent, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, we are an independent country totally. Socialist मतलब social welfare, सबको बराबर का social justice हमें दिलवाना है। Democratic मतलब there are elected government representatives, right, who represent the people of the country, MLA and MP जो होते हैं। Republic मतलब head of the state is elected again and again, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया में, हेड ऑफ द स्टेट। इंग्लैंड इज नॉट अ रिपब्लिक क्योंकि वहां पे अभी भी क्वीन, किंग्स एंड क्वींस वाला सिस्टम चल रहा है। अमेरिका इज अ रिपब्लिक। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बिकॉज पार्लियामेंट इज द टॉप मोस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। अब आप सोचोगे नहीं वो तो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है ना इंडिया में, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो पार्टी पावर में होती है, नहीं, वो पार्लियामेंट में ही तो मेजोरिटी में, वो पार्लियामेंट में ही लॉ बनाते हैं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, वो एग्जीक्यूट करते हैं उन लॉ को। ये सब अभी हम सीखेंगे, ठीक है। सो ये मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। स्पेंड सम टाइम हियर। सो इंडिया दोनों है, रिपब्लिक भी पार्लियामेंट्री भी। इंग्लैंड पार्लियामेंट्री है बट रिपब्लिक नहीं है। यूएस पार्लियामेंट्री नहीं है बट रिपब्लिक है। ये चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। ऐसे ये थोड़े बहुत एक दो एग्जांपल्स भी याद करने हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं। डेमोक्रेटिक तो तीनों ही है, इंडिया, यूएस, यूके। ओके, इंग्लैंड, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, बहुत सारे वर्ड से लोग कंफ्यूज होते हैं। आप इस पे रिसर्च खुद कर सकते हो, डोंट वेस्ट टाइम, यूपीएससी नहीं पूछेगा ये आपसे। रिपब्लिक इंडिया है,
और यूएस है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया है और यूके है। कुछ लोग ऐसी 50-50 कंट्रीज के नाम याद करते रहते हैं, यूपीएससी नहीं पूछेगा भाई, यूपीएससी को बस जस्ट डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए और फिर इंडिया के मेन फीचर्स मालूम होने चाहिए। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, आई होप ऑल ऑफ यू नो, इंडिया में हम सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ऑल द सिटीजन्स इन द कंट्री हैव फंडामेंटल राइट्स एंड देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स जो कोई बाहर वाला आ जाए ना उसको भी है वो फंडामेंटल राइट्स, कि हम किसी की भी जान नहीं ले सकते इंडिया में। दैट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ इन इंडिया फॉर एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग इन इंडिया, जो भी इंडिया में होंगे। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर हमें राइट्स मिले, अगर हमें कुछ बेनिफिट्स मिले तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है ना, कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव मतलब होता है डायरेक्शन देना, तो डायरेक्शंस टू स्टेट, स्टेट मतलब जब मैं बोल रहा था ना कि स्टेट इज द गवर्नमेंट, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्शन दी है स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, सो दैट देयर इज नो poverty, no injustice, no child labor, no women harassment, ऐसा चीजें। ओके, तो ये भी हम सीखेंगे। देन सिंगल सिटीजनशिप, सब इंडिया के सिटीजन हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कर्नाटका का सिटीजन है, कोई केरला का सिटीजन है, कोई आंध्र प्रदेश का सिटीजन है, कोई तेलंगाना का सिटीजन है, कोई झारखंड का सिटीजन है, राइट? वी ऑल आर इक्वल सिटीजन्स एंड वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये हम जुडिशरी के वीडियो में पढ़ेंगे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन इंडिया। इंडिया में दैट इज वाई 3 पिलर्स बोला जाता है हमारे डेमोक्रेसी के। 1 पिलर इज पार्लियामेंट, 1 पिलर इज एग्जीक्यूटिव जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर सब आ जाते हैं, 1 पिलर इज जुडिशरी। ये सब इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे पे चेक रखते हैं कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज मत करे। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चेक की पॉलिसी है, एक दूसरे पे फेयर चेक रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं एक दूसरे पे, कि पार्लियामेंट के रूल्स कभी कभी जुडिशरी रोक देती है, जुडिशरी में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन देम, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गलत किया तो जुडिशरी कैन ऑल्सो क्वेश्चन, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो क्वेश्चन, ये सब चीजें। सो दैट इज हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइसली डिजाइंड, कि कैसे सब चीजों के पावर्स है, कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करना है। और कभी कभी हम 4th पिलर भी बोलते हैं, मीडिया, ये इन सबको चेक करते हैं। कभी कभी 5th पिलर भी बोलते हैं, हम सब लोग सिटीजन्स, अगर हम सिटीजन्स अपना काम सही से करेंगे, हम सबको फोर्स कर सकते हैं मीडिया को अच्छा काम करने के लिए, जुडिशरी को अच्छा काम करने के लिए, एग्जीक्यूटिव को अच्छा काम करने के लिए, पार्लियामेंट को अच्छा काम करने के लिए। दैट इज द goal of us at Clay Lab also. That is why I am also making these videos, ताकि हम citizens smartly काम करना सीखें। We don't want कि आप लोग कोई भी time waste करो। So this video was about the introduction to Indian Constitution. Pause करके, revise करके, थोड़ा और अपने आप research करके understand these terms nicely today itself. All right. So with that, we are done with our first video, introduction to constitution, and now those next two videos are going to be about fundamental rights, फिर fundamental duties, right? और remember constitution की definition क्या थी, कि क्या powers हैं, कौन कौन काम करेगा, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके आपस में रिलेशन क्या है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, कैसे चेंज कर सकते हैं हम उनकी पावर, अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, फिर रिवीजन करना, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट पॉलिटी इज यूपीएससी के पेपर में, ये ही एसएससी के पेपर में भी आता है, सीजीएल के पेपर में भी, और भी बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। एंड अदरवाइज ऑल्सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, सो वो जो लोकल लाइक रूटीन नैरेटिव होता है ना, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ये वो सब छोड़ो। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग जितना ज्यादा हो सके लोगों से शेयर करो। इफ यू नो समवन वांट्स टू स्टार्ट यूपीएससी का प्रिपरेशन, शेयर दिस वीडियो। इफ यू नो समवन वांट्स टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कोई सोसाइटी में इंटरेस्टेड है, सोसाइटी को समझने में, हमारे कंट्री को समझने में, हमारे कंट्री के सिस्टम को समझने में, I will help you understand and like your country, like your society, like the whole humanity in these 160 videos from my side. I like when I prepared for UPSC, I started liking all these things a lot. So that is what I also want to share it with you. That is it for today's video. I mean this video, and see you in the next video. Bye bye. Take care.